میرے خیال میں کافی حد تک کلیئر سٹانس آپ کا آ چکا ہے کہ آپ لوگ معافی تو کسی صورت نہیں مانگنا چاہ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ 9 مئی کو اب آپ لوگ پورے ملک کے اندر احتجاج بھی اور ریلیاں بھی نکالنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کلیش کی صورتحال تو پھر مزید خراب ہو جائے گی، مزید ہم لوگ ہیڈ آن کولیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تھینک یو منصور صاحب، ویری کائنڈ آف یو۔ آپ کے پروگرام میں ہمیشہ خواہش ہوتی ہے آنے کی۔ دیکھیے، ہم بالکل کلیش نہیں چاہتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ جو آپ نے کہا معافی مانگنے کی سٹیج اس وقت آتی ہے جب کہ کوئی جرم ثابت ہوتا ہے، اور جرم ثابت کسی شخص واحد کی انگلی پوائنٹ آؤٹ کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک پراپر کانسٹیٹیوشنل لیگل پروسیس ہوتا ہے، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کو عرف عام میں ایک جوڈیشل انویسٹیگیشن کمیشن کہتے ہیں۔ ہم 9 مئی سے ہی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہوتا اگر یہ کمیشن قائم کر دیا جاتا، وہ تھرلی انویسٹیگیٹ کر لیتا سارے محرکات کو، کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کس نے کروایا ہے، کیوں کروایا ہے، اور اس کے بعد جرم ثابت ہوتا، مجرمین کی نشاندہی ہوتی، تو ہم ساتھ کھڑے ہوتے کہ ہاں قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ لیکن اس سارے پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے بغیر، اس سارے پروسیس میں سے گزرنے کے بغیر، اگر ایک شخص واحد کی دقت کے اوپر ایک شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی آپ معافی مانگے، کیوں کہ آپ مجرم ہیں، کس نے بنایا نہیں پتا، تو میرا خیال ہے کہ بھائی ہمارا جواب تو وہی ہوگا جو میں نے کل دے دیا ہے کہ نہیں، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر تو معافی کی بات کھڑی نہیں ہوتی ہے، there's no nothing۔ سو ایک انویسٹیگیشن کرائیے، اور اس کے بعد معاملات جس طرف جائیں گے اس کے مطابق جو ہے جو ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ لیکن رؤف صاحب، اسی کو اگر دوسری سائٹ پہ دیکھیں، 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو اس معاملے کے اوپر بھی ابھی تک تو کوئی تحقیقات سامنے نہیں آئی، جو 2024 کے الیکشنز کو ریگڈ الیکشنز کہیں یا متنازع کہیں، لیکن اس کے اوپر آپ اسٹریٹ فارورڈ آپ نے پریس کانفرنسیں کی، آپ نے کہا ہماری 180 سیٹیں ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ آپ ایک کلیئر کٹ پوزیشن لے رہے ہیں بغیر کسی تحقیقات کے۔ ہمارے پاس پروف موجود ہیں، ہم نے اس کا 300 پیج کا وائٹ پیپر ہم نے شائع کیا ہے، اس میں وہ پروف جو ہیں فارم 47 کی مناسبت اور فارم 45 کی مناسبت سے وہ موجود ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم ای سی پی کے پاس اپنی پٹیشنز لے کے جا رہے ہیں جو کہ قانونی تقاضا ہے، ہم ٹرائیبیونلز میں اپنی پٹیشنز لے کے جا رہے ہیں جو قانونی تقاضا ہے، اگر ہمیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا تو وہ بھی ہم جائیں گے۔ سو ہم قانونی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، ہم ایک آئینی اور قانونی جو عمل ہے اس کو پرسو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہی ہم اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنے انیشل جو فائنڈنگز تھی ہماری، وہ ہم نے وائٹ پیپر کی شکل میں عوام تک پہنچائی ہیں، آپ بھی ان کو پڑھ لیجئے، میں آپ کو ایک کتاب اس کی بھیج دوں گا، آپ کو اس کی سافٹ کاپی بھی دے دیجیے، آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس میں شواہد موجود ہیں۔ I've read that، رؤف صاحب، میں نے وہ وائٹ پیپر آپ کا پڑھا ہے، لیکن اگر اسی طرح پروفز کی بات کی جائے تو پروفز تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پھر اسی طرح پریس کانفرنس کے اندر رکھے تھے، وہ تصویریں، وہ ویڈیوز، وہ سب کچھ انہوں نے دکھایا تھا، شاندانہ گلزار کا وہ بیان بھی انہوں نے دکھایا کہ خان ہے تو پاکستان ہے۔ اگر اس قسم کی باتیں تو پھر پروفز کے طور پہ تو پھر that's enough، اور اس کے علاوہ یہ معاملہ تو آلریڈی کورٹس کے اندر تو چل رہے ہیں، 9 مئی کے معاملہ تو آلریڈی کورٹس میں آلریڈی موجود ہیں جہاں پہ اس کے اوپر ہیئرنگز ہو رہی ہیں۔ دیکھیے کورٹ میں جیسے چل رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، آپ کو بھی نظر آ رہے ہوں گے، ہمارے لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو مقدمات ہیں وہ بالکل سٹال ہوئے ہوئے ہیں، بالکل آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات، میں آپ کے پہلے جو آپ کا سوال کا پہلا حصہ ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ اگر یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں، ان کے پاس کیمرے کی آنکھ پہ محفوظ کی ہوئی تصویریں موجود ہیں، تو یہ وہ سارے پروف جو ہے وہ لے کے اسی جوڈیشل کمیشن کے پاس جا سکتے ہیں، اپنا کیس، اپنا مقدمہ ثابت کر سکتے ہیں، سزائیں دلوا سکتے ہیں۔ ہمارا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جوڈیشل پروسیس سے ایک آئینی جو تقاضا ہے اس کو پورا کیے بغیر انگلیاں لوگوں کی طرف اٹھانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جوڈیشل پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو کس کے پاس کوئی مارجن ہی نہیں رہے گا کہ وہ اس کو ڈسپیوٹ کرے، جو بھی سزا قانون کے تحت ملنا چاہیے وہ ملے گی، پھر اس کے بعد لیکن اس کو قبول کریں گے، سب پارٹیز قبول کریں گے۔ رؤف صاحب، جوڈیشل پروسیس کا لفظ جب آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ ابھی جب معاملہ ایک عدالت کے اندر ہے، آپ خود فرما رہے ہیں عدالت میں ہے، لیکن آپ کو اس سسٹم سے، اس پروسیس سے کے اوپر اعتبار نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ چل رہا ہے میں اس پہ اعتبار نہیں کر رہا، تو پھر کل کو کیا پتا جوڈیشل کمیشن جس طرح بنے، جوڈیشل کمیشن اس جوڈیشل پروسیس کو جس طرح آ کے لے کے چلے، اور اگر اس کا رزلٹ آپ کے خلاف آیا تو پاکستان تحریک انصاف کل کو یہ بھی کہہ دے گی جناب اس کے پروسیس سے بھی ہم مطمئن نہیں ہیں۔
देखिए, जब एक जुडिशल कमीशन बन जाता है तो वो उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर मुकदमात बनेंगे और वो अदालतों में जाएंगे। अदालतें जब सजाएं देंगी तो वो तो सजाएं एक्सिक्यूट होंगी ना, उसके बगैर तो चारा कोई नहीं रहेगा, क्योंकि एक कानूनी तकाजा जो है उसको पूरा किया गया है। मेरी सिर्फ फर्ज इतनी है कि जी कानूनी तकाजे पूरे करने से पहले फिंगर पॉइंटिंग जो है वो ना करें, लोगों को मुजरिम या जो है वो ना गर्दाने, और ये मत कहें कि किसी एक पार्टी से या किसी फर्द से जो है वो जुर्म सरजद हुआ है। हमारी अर्ज सिर्फ इतनी है कि एक जो उसके साथ जो नेसेसरी कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा कीजिए, उसके बाद जो सजाएं मिलेंगी वो लाजमी बात है उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। Whatever has happened in the last 24 hours, रऊफ साहब, उससे क्या ये नतीजा अक्स किया जा सकता है कि आप लोगों की तरफ से जो एक विलिंगनेस थी कि हम लोग मुज़ाकरात करें, जिसके हवाले से आप लोगों ने एक 3 रुकनी कमेटी भी बनाई, वो प्रोसेस अब डंप हो गया, वो तो कम से कम मुज़ाकरात की तो बात अब हो ही नहीं सकती, वो तो टेबल से ये चीज़ हट गई है अब। मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियरली वाशगाफ अंदाज में ये बताया है कि हमारी तरफ से बातचीत करने के दरवाजे खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। हम उन दरवाज़ों को बिल्कुल बंद नहीं करते, क्योंकि हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि अदारों के दरमियान या जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं, उसमें लड़ाई झगड़े का कोई मकाम नहीं आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो टेंशंस क्रिएट हो गई हैं उनको भी हम चाहेंगे कि हम जो भी इनिशिएटिव ले सकते हैं उनको कम करने के लिए वो हम करेंगे, लेकिन हम बेसिकली एक कानूनी तकाजा जो है उसको पूरा करने की डिमांड कर रहे हैं, और उसके बगैर जो भी फेल होगा, जो भी सजा दी जाएगी वो डिस्प्यूटेड होगी। हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज जो है वो डिस्प्यूटेड हो। हम चाहते हैं कि तमाम फरीकैन जो हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन के जो कंक्लूजन्स होंगे, जो इसके नताइज निकलने से उसके साथ एग्री करें, और उसके बाद जो पनिशमेंट्स, जो भी जो तरीका आगे बढ़ने का जो है वो मुतय्यन किया जाएगा तो उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। ये मामला खत्म होना चाहिए, ये टेंशन जारी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए हम आईनी और कानूनी तकाजे पूरे करने का डिमांड कर रहे हैं, ताकि ये सब कुछ वैसे हो सके जैसे कि हम चाह रहे हैं। लेकिन रऊफ साहब, जब आप इस तरह की एक कोशिश करें, चाहे वो मामला अदालत का हो या मामला एस्टैब्लिशमेंट का हो, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, अगर आप उनके सरबराहों के खिलाफ बयानात दें, उनके सरबराहों के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स जारी करें, टेलीग्राफ के अंदर एक आर्टिकल लिखा जाए जो मुल्क के आर्मी चीफ को टारगेट कर रहा हो, मेरे ख्याल में रूम ऑफ एंगेजमेंट उसके बाद काफ़ी हद तक ख़त्म नहीं हो जाता। मेरे रियलिस्टिकली स्पीकिंग काफ़ी हद तक या तो फिर ये एक टैक्टिक है कि इन दोनों सरबराहों के ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्डअप किया जाए, वरना तो इस सूरत हाल के अंदर कोई भी आपसे एंगेज नहीं करेगा। देखिए मंसूर साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप ज़रा थोड़ा सा नज़र माजी की तरफ दोहराएं और देखें कि 9 मई के बाद से पीटीआई के ऊपर क्या 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 रियासती जबर जो है उसका नज़ूल हुआ है, किस किस आग के दरिया से हम गुजरे हैं और गुजर रहे हैं। बिटरनेस, तो एक लेवल ऑफ बिटरनेस तो क्रिएट हो जाता है ना, उसको तो आप डिनाई नहीं करेंगे ना, मैं उसको डिनाई कर सकता हूं। और फिर उसकी डिसेमिनेशन भी होती है, उसकी एक्सप्रेशन भी मिलता है, कोई ना कोई वो होता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी हम बैठ के बातचीत करके मसाइल को हल नहीं कर सकते। इन तजादात के बावजूद, इस बिटरनेस के बावजूद हम ये फील करते हैं कि रियासत के इंटरेस्ट में यही है कि मामलात जो हैं वो बातचीत के जरिए हल किए जाएं, जिसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वो 3 लोग जिनको खान साहब ने एम्पावर किया था, शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब और अली अमीन गंडापुर साहब, वो मौजूद हैं। अगर चाहते हैं किसी और से बात करना तो वो भी हम उसको भी फैसिलिटेट कर देंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा ज़रा और आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए, अगर हमने निशानदेही की है कि जी कुछ लोग ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, आप बाकी चीज़ें भूल जाएं कि पास्ट में क्या होता रहा है। जिस तरीके से उन्होंने पीटीआई को निशाना बनाया है, जिस तरह से उन्होंने हमें फसादी टोले के नाम से जाना है, जिस तरीके से हमारे बारे में कुछ अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, हमारे लीडरान के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ये भी तो मुनासिब नहीं है ना। इसका रिएक्शन तो फिर आता है ना। हमारे कंट्रोल में वो ट्विटर का रिएक्शन नहीं है, हमारे कंट्रोल में सोशल मीडिया का रिएक्शन नहीं है, वो लोग हमारे ताबे नहीं है। हम उनको हमारी से सोशल मीडिया रिएक्शन, मैं कोई इंडिविजुअल अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, जो आर्मी चीफ की तस्वीर लगा के, चीफ जस्टिस की तस्वीरें लगा के ट्वीट्स कर रहे हैं। तो मैं आपकी ऑफिशियल पोजीशन की बात कर रहा हूं। देखिए, मैंने जो कुछ कहना था वो मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है। मैंने इंडिविजुअल्स को टारगेट नहीं किया, मैंने सिर्फ आइन और कानून की बात की है, और मैंने उन तकाज़ों को पूरा करने की बात की है जो कि आइन और कानून में दर्ज हैं। मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ने के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता।
तमाम पार्टीज़ को आई थिंक एक अनडिक्लेयर्ड सीज़फायर जो है वो मतलब अनअनाउंस्ड सीज़फायर जो है उसको डिक्लेयर करना चाहिए और बातचीत की तरफ बढ़ना चाहिए, इंटरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, मामलात को आगे बढ़ाने का तरीका हमारी नज़र में तो सिर्फ यही है। इससे बेहतर प्रॉब्लमैटिक एरिया जिस जगह पे आता है वो ये है, मुझे आज भी याद है गुजरांवाला के अंदर नवाज शरीफ साहब ने जब स्पीच की थी और उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI का नाम लिया था एक जलसे के अंदर, तो रात को जितने टॉक शोज हुए थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को गद्दार तक डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जनाब आपने मुल्क के आर्मी चीफ का नाम किस तरह लिया, आपने उनके ऊपर इस किस्म के इल्जाम किस तरह लगाए। आज टेबल टर्न हो चुका है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये सब कुछ कर रही है तो क्या वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए? मेरा ख्याल में तो वो नाइंसाफी होगी। या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एहसास हो रहा होगा कि हमने अगर उस वक्त एक सियासी जमात के ऊपर इस किस्म के इल्जाम लगाए तो वो करना गलत था। देखिए, हमने कोई तस्वीरें लगाई नहीं है, हमने कोई ऐसे जलसे नहीं किए, लेकिन मैं उन चीज़ों को पास्ट में हुआ है, मुझे नहीं पता कि मेरी पार्टी के लोगों ने क्या ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी या नहीं जो कि आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने दी थी, किस कॉन्टेक्स्ट में दी थी, क्या पर्सपेक्टिव्स थे उनके। मैं फील करता हूं कि जी इस वक्त रियासत जहां खड़ी है हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि ये रियासत और ज़्यादा इसी अंदाज में आगे बढ़े, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो चुकी है। तो रियलाइजेशन जो है वो तमाम अतराफ में आनी चाहिए और बातचीत की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने अपने मैनिफेस्टो में आप देखेंगे 2 चैप्टर्स लगाए हैं, एक तो ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन के ऊपर है, दूसरा हीलिंग एंड नेशन के ऊपर है। वो दोनों चीज़ें हमारे फ्यूचर के प्लान्स में शामिल हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क, इस रियासत, इस कौम के जख्मों के ऊपर मरहम रखी जाए, रादर दैन कि निश्तर का इस्तेमाल करके उनको और ज़्यादा कुरेदा जाए ताकि और खून उनमें से रसे। तो ये मौका आ गया है, मेरा ख्याल बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए तमाम लोगों को इस बातचीत को स्टार्ट करने के लिए और इस बातचीत को आगे ले जाने के लिए। मेरी तो कंटेंशन यही है, मंसूर साहब, हमेशा से यही रही है। मैं जो ज़ाती तौर के ऊपर जो थिंक टैंक चलाता हूँ वो भी नेगोशिएशंस में, वो भी डायलॉग में यकीन रखता है। हम लोग डायलॉग्स ही होल्ड करते हैं और हम ये भी मैं ज़ाती तौर के ऊपर यकीन रखता हूँ कि जहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हों वहाँ डायलॉग जो है वो अनइंटरप्टेड और अनइंटरप्टेबल होना चाहिए। तो मेरी तो ज़ाती तौर के ऊपर यही एक बिलीफ है और मैं इसी का प्रचार करता हूँ। मैं आज भी फील करता हूँ कि सारा इस सब बिटरनेस के बावजूद डायलॉग का रास्ता जो है वो हमेशा खुला रहना चाहिए और डायलॉग ही वो वाहिद रास्ता है जिससे मसाइल हल किए जा सकते हैं। लड़ने झगड़ने से, फिंगर पॉइंटिंग से, नेम कॉलिंग से नहीं होता सर। अच्छा, चले मैं एक सिनेरियो आपके सामने रख देता हूं। आप जो डायलॉग की बात कर रहे हैं, अगर आज आपको इस प्रोग्राम के बाद लेट्स से आपको फोन आ जाता है, एस्टैब्लिशमेंट से आपको फोन आ जाता है कि जी आइए बैठ के एंगेजमेंट करते हैं, आपकी कोई शरायत है? देखिए, जब हम जाएंगे अगर इस किस्म की कोई, एक तो मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस किस्म की कोई इनिशिएटिव स्टेज के ऊपर आएगी, लेकिन अगर आ जाती है, हाइपोथेटिकली आप फरमा रहे हैं, ठीक है, तो हम जाएंगे, हम बैठेंगे अक्रॉस द टेबल। मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ शरायत लेके जाएंगे, हम बैठ के बात करेंगे, देखेंगे कि मामलात किस तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद अगर कोई चीज़ें होंगी, कोई रिजर्वेशंस होंगे तो वो हम मामलात के आगे बढ़ने के साथ साथ उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। जो इनिशिएशन ऑफ डायलॉग है वो मेरा ख्याल है कि शरायत के बगैर हो तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर।